قائدین تیار کرنا مؤثر خدمت کے کام کے لیے ان کلیدی رہنماؤں کی طرف توجہ مرکوز کرنی چاہیے جو قائدانہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں راشد اس کی وضاحت کروں گا۔ اب اس خاص مثال میں ہم یسوع مسیح بطور کلیدی رہنما پر غور کریں گے، اور اس کے ساتھ خاص رسول ہیں جو کلیدی قائدین ہیں اور وہ ان کو تیار کر رہا ہے۔ مگر ان 12 میں سے ایک کو انفرادی طور پر خاص کام کے لیے تیار کیا گیا اور اس کا نام یقیناً پطرس ہے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ 5000 کا گروہ اس کے پیچھے ہے، اور ان 5000 آدمیوں کو بچوں اور عورتوں کے علاوہ کھانا کھلایا جو وہاں موجود تھے، اور جس کشتی میں وہ تھا اس نے شاگردوں کو بٹھایا اور اپنے آگے بھیج دیا، اور یسوع پہاڑ پر دعا کے لیے چلا گیا۔ اگرچہ یہ واقعہ مبارک بادیوں والے پہاڑ کی بنیاد پر ہوا، ممکن ہے کہ یہ اس پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گیا اور یقیناً وہیں اس نے دعا کی ہوگی۔ ہم یقینی طور پر نہیں جانتے وہ پہاڑ کی ایک طرف چڑھ سکتا تھا، مگر وہ اکیلے دعا کے لیے گیا۔ پھر ایک طوفان برپا ہوا اور یہ کشتی کو تقریباً میل تک لے گیا۔ یہ حقیقت میں کہتا ہے کہ زمین سے 1 میل کے فاصلے پر، اور یہ اس مقام سے تقریباً 8 میل دور تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ کفرنہوم تک پہنچیں، مگر طوفانی لہریں اور موجیں ان کو باہر کر رہی تھیں اور وہ کشتی میں ادھر ادھر ہو رہے تھے۔ اور پھر یسوع پانی پر چلتے ہوئے ان کے درمیان آتا ہے۔ یہ صبح 3 بجے کا وقت ہوتا ہے، اور خیال کریں یہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بھوت ہو۔ یہاں پڑھتے ہیں متی کی انجیل 14ویں باب اور اس کی 26 اور 27ویں آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ اور وہ ضرور چلا رہا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ موجوں اور لہروں کے درمیان یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ یقیناً وہ شک کی حالت میں تھے، بشمول پطرس کے، جو آیت 28ویں میں کہتا ہے کہ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اب دوبارہ ایسا منظر تخلیق کرنے کے لیے آپ کو پوری طاقت سے چیخنا پڑے گا۔ اس نے کہا، آ۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا۔ میں ایسا تجربہ سوچ بھی نہیں سکتا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اسے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ یسوع اسے خالی کر رہا ہے۔ اسے یہ تعلیم بطور روحانی پیشوا اور خاص رسولوں کی طرح کلیسیا تیار کرتے ہوئے اسے روحانی طور پر بہت سے طوفانوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ اس لیے یسوع ان کو ایمان میں مضبوط کرتا ہے۔ وہ ان سے بات کر رہا تھا، اور لکھا ہے، اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی۔ جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ اب کشتی میں سوار باقی لوگ یقیناً دوسرے رسول تھے، اور یسوع جب ان میں سے کسی کے ساتھ کلام کرتا ہے اور ان کو سکھاتا ہے جیسے پطرس کو، تو وہ ان سب سے بات کرتا ہے، اور یسوع کے سکھانے کا یہی طریقہ ہوتا۔ اب اس مسئلے میں ہمیں واپس جانے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے پطرس کے ماضی میں جب وہ پہلی دفعہ یسوع سے ملا، مجھے نہیں معلوم، شاید اس واقعے سے 1 یا آدھا سال پہلے، مجھے معلوم نہیں ہے، مگر یقیناً آپ کو یہ واقعہ ضرور یاد ہوگا۔ اس کی پہلی ملاقات یروشلم میں ہوئی، اور وہ اس سے پہلے یسوع سے نہیں ملا، اور اس کا بھائی اندریاس جو کہ یوحنا اصطباغی کا شاگرد تھا، شاید اس نے اپنی ماہی گیری کے کاروبار سے علیحدگی اختیار کی تھی اور یروشلم چلا گیا اور اس میں شامل ہو گیا، جس کو پطرس ایک مذہبی جماعت سمجھتا تھا، کیونکہ یہودیوں کا
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में यही ख्याल था और सब फरीसी उसके खिलाफ थे और पतरस उसकी जांच पड़ताल के लिए गया। हो सकता है क्योंकि ये जहां वो रहते थे वहां से 100 मील दूर था और पतरस यरूशलेम के करीब था। और हम तलावत करते हैं इन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे। एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था और इंद्रियास यूहन्ना अस्तबागी का शागिर्द था। और फिर ये लिखा है, उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया, और वो उसे यीशु के पास लाया। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि पतरस उससे पहले कभी नहीं मिला था और इंद्रियास वहाँ मौजूद था। वो उनके आबाई इलाके से सैकड़ों मील दूर था और पतरस यरूशलेम में मौजूद था और इंद्रियास को ये पता था कि वो वहाँ है, लिहाजा वो वहाँ गया और उसे मिला। उसने कहा, भाई मैं तुम्हें यहाँ किसी से मिलाना चाहता हूँ। और इसलिए यीशु ने उस पर निगाह करके कहा, तू यूहन्ना का बेटा शमौन है। ठीक है, मगर इंद्रियास को ज़रूर बताना चाहिए था कि वो कौन है। और फिर यीशु ने कहा, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। अरामी में इसका मतलब चट्टान है, यूनानी में पेट्रोस का मतलब पतरस है। और यहाँ यीशु झील से बाहर इस मिसाल से ये कह रहा है कि पतरस मेरी चट्टान कहाँ है। तुम्हें चट्टान बनना है, तुम्हें ईमान लाना है। वो तालीम दे रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि वो ना सिर्फ एक को बल्कि सबको तालीम दे रहा है। यहाँ यीशु का तरीक़ा तदरीस बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि मैं उसे हिकमत से मामूर करना कहूँगा। हम देखते हैं वो हजूम की खिदमत करता है। लोगों ने उसका कलाम सुना, उसने हजूम को खाना दिया, रोटियों और मछलियों पर बरकत दी, उनको सिखाया। मगर उसे सुन कौन रहे थे? वो जो शागिर्द कहलाए। अब ये एक बहुत बड़ा हजूम था जिन्होंने कहा, हम उसके पीछे जाना चाहते हैं। वो उसकी तालीम को सुनना चाहते थे। वो सिर्फ अपनी जिस्मानी ज़रूरत में दिलचस्पी नहीं रख रहे थे, बल्कि रूहानी चीज़ों की तलाश में थे। और फिर यीशु हजूम से मुड़ा और शागिर्दों से कलाम किया। बाज़ औक़ात हजूम उसे सुनते थे जब वो छोटे ग्रोहों से मुखातब होता। मेरा मानना है कि जो कुछ वो कह रहा था उससे वो अपने कानों को दबा रहे थे, जैसे कोई छोटा ग्रोह। और फिर शागिर्दों में एक बड़ा हजूम, 12 आदमी। यीशु बड़े हजूम से जो भी कलाम करता उसको शागिर्द भी सुनते। लेकिन फिर वो उनकी तरफ फिरा और उनको तालीम दी। उसने कहा, और उन्होंने उससे सवालात किए, यीशु हमने तुम्हें शागिर्दों से ये बात करते सुना, इसका क्या मतलब है? फिर उसने उन्हें खाली किया और सिखाया। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है, क्या ये है? मगर रसूलों के अंदर ये मुहीत हो गया। पतरस, याकूब और यूहन्ना वहाँ मौजूद होते और बाज़ औक़ात इंद्रियास भी होता। अगरचे इंद्रियास के साथ एक करीबी ताल्लुक़ था, यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक तरफ ले गया और तालीम दी और बाज़ औक़ात दूसरों को एक तरफ कर देता। और मुझे यकीन है कि ये लोग वापस आए और कहा, क्या तुम्हें यकीन नहीं कि यीशु ने हमसे क्या कहा था? इसलिए यीशु छोटे ग्रोह में भी खिदमत करता था। और फिर उसने पतरस और यूहन्ना को खाली किया। हम देखते हैं कि जब वो यरूशलेम में गए तो उसने पतरस और यूहन्ना को भेजा कि फसह तैयार करें, क्योंकि उसके पास उन दोनों के लिए एक ख़ास सबक था। क्योंकि जब आप इमाल की किताब पढ़ते हैं तो इमाल की किताब में कौन इब्तदाई कायदीन होते हैं? पतरस और यूहन्ना। पतरस लीडर होता है और यूहन्ना उसके साथ मुंसलिक होता है। इसलिए यीशु की ग्रोहों में खिदमत के दौरान वो शागिर्दों और रसूलों को भी तालीम देता है, जिसमें पतरस, याकूब और यूहन्ना शामिल होते हैं। यहाँ झील के बाहर वो पतरस को खाली करता है और यहाँ सबक सिर्फ पतरस के लिए ही नहीं है, ये उन तमाम 12 रसूलों के लिए उनके ईमान पर मबनी था। इसलिए ये मिसाल हम सब के लिए एक बहुत बड़ी कुव्वत है। मेरा ख्याल है कि दूसरों को तैयार करने के हवाले से अब हमें यहाँ कुछ समझने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे अमली इतलाक़ के लिए सवाल पढ़ने का मौका दें। सवाल ये है,
पौलुस ने इस असूल को ज़िंदगी गुजारने के लिए कैसे इख्तियार किया। इससे पहले कि हम इस पर गौर करें, मेरा ख़्याल है कि इसको हमें एक मिसाल के ज़रिए समझना चाहिए कि पतरस रसूल ने कभी भी किसी चीज़ को दोबारा तख्लीक नहीं किया जैसे यीशु ने किया, और पहले दर्जे पर नहीं था। वो खुदा का बेटा नहीं था। उसकी एक वजह ये थी कि पतरस ने कभी भी उस काम की नकल नहीं की। हाँ, मगर एक जो चीज़ खुदा पतरस के ज़रिए से वजूद में लाया वो कलीसिया है, और कलीसिया का वजूद में आना ये शागिर्दियत के लिए एक नया नमूना है। इस ताल्लुक से पौलुस हमारे लिए लिखता है कि मसीह का बदन, जहाँ वो इफसियों को लिखता है, और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबश्शर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। किस लिए? ताकि मुक़द्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। और बाद में वो कहता है जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से पाविस्ता होकर और गठ कर उस तासीर के मुआफिक जो बकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है, ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ यीशु ने यूहन्ना और पतरस के साथ किया और ये पहलू दीगर तमाम हालात में लागू होता है, क्योंकि पौलुस इसका नमूना देता है। और हम ये तीमुथियुस को लिखे गए ख़त में पढ़ते हैं, और वो लिखता है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी, उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। ये निहायत दिलचस्प है कि पौलुस ने मुकम्मल तौर पर यीशु की नकल नहीं की थी, मगर उसने इस उसूल में उन अनासर का इस्तेमाल किया। उसके पास ये अनासर मौजूद थे, ख़ास तौर पर तीमुथियुस जैसे आदमी। तीमुथियुस को तैयार करने के लिए उसकी पूरी तवज्जो उन मिशनरी दौरों पर थी। हालांकि दूसरे लोग भी मौजूद थे, मगर तीमुथियुस जैसा कोई न था, और पौलुस रसूल का तीमुथियुस के साथ एक ख़ास रिश्ता था। उसको तैयार करना ताकि वो दूसरों को और वो आगे लोगों को तैयार कर सकें। इसलिए हमारे पास एक बहुत ख़ास नमूना मौजूद है। मैं इस उसूल को जो यीशु ने पेश किया दोबारा बयान करूँगा, और यही पौलुस रसूल की ज़िंदगी से नज़र आता है, जो कि मसीह के बदन का तस्वर पेश करता है। मौसर खिदमत के काम के लिए इन कुलीदी रहनुमाओं की तरफ तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए जो कायदाना सलाहियत रखते हैं। आज हमारे मुआशरे में, हमारी कलीसियाओं में हम ये कहेंगे कि मौजूद लीडर पास्टर को दूसरे मरकज़ी रहनुमाओं को तैयार करने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। ये लोग उसके साथी हो सकते हैं, ये वो आम आदमी हो सकते हैं जो छोटे ग्रुपों की रहनुमाई कर रहे हैं, मगर उनको तैयार करना और वो दूसरों को तैयार करें, ये एक शानदार रसूल है जिसकी मिसाल हमें नए अहदनामे में मिलती है। मौसर खिदमत के काम के लिए उन कुलीदी रहनुमाओं की तरफ तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए जो कायदाना सलाहियत रखते हैं।